به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. درس 12. عنوان درس 12: استادان زبان و ادبیات فارسی در تهران. خب شما یه عکسی رو اینجا میبینید. این یه عکس هست. این عکس به نظر من عکس یک کنفرانسه، درسته؟ یک مجمعه، یک کنفرانسه، یک سمینار هست، یه همایش هست. همایش هم میگه ما اینو به زبان فارسی همایش، مجمع هم میگوین، ولی الان کلمه جدیدی که استفاده میکنن همایش استفاده میکنن. هم آیش یعنی دور هم، گرد هم جمع شدن. خب همایش، پس این همایشه. از شما میخوام که شما هر کدومتون یک جمله در مورد این عکس یک جمله بیان کنید. خانم سایما شما بفرمایید که یک جمله در مورد این عکس بگویید. یک جمله فقط. بله آقا. مثلا چگونه جمله بگویم آقا؟ خب مثلا بگید که این عکس بله. مثلا در این عکس زیباست. این عکس خیلی زیباست. مثلا در این عکس پنج تا نفر هستند. یک نفر دارد سخنرانی میکنه. आपने पढ़ लिया ना, एक बंदा तकरीर कर रहा है. شما باید اینجوری صحبت کنید. در این عکس چند نفر؟ در این عکس 5 تا نفر هستند. ولی برای بقیه همین چیزهای باقی بذارید تو که شما فقط یک جمله بگویید. جی. اوکی. در این عکس 5 تا نفر هستند. در این عکس 5 نفر هستند، یعنی افراد زیادی نشستن. اینجا هم نشستن. خیلی خوب. آقای خب خانم زیبا شما بفرمایید. در این عکس چی می‌بینید شما؟ در این عکس چند نفر داره. عکس صدای شما نیومد خانم زیبا. क्या चीज रखता है? در این عکس چند عکس‌های داره. آره این عکس چند عکس، خودش هم چند عکس داره. خب یا اینجا تابلو یا یک بنری که زاده، اون بنر اینجا نوشته شده هفتمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی نوشته شده است. خیلی خوب. آقای دکتر ظفر شما بفرمایید. آقا من فکر میکنم که این یک مجمع بین المللی یا کانفرنس بین المللی است. یک کنفرانس بین المللی. خانم رابعه شما بفرمایید. آقا این کنفرانس استادان زبان فارسی در زبان فارسی پروموت ترویج است. very good. برای ترویج زبان فارسی برگزار می شود. ماشاءالله. این برنامه برای ترویج very good. बहुत अच्छा आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ترویج. برای ترویج و توسعه زبان فارسی برگزار می شود. خیلی خوب. خانم مریم. آقا در این عکس یک سپیکر است. یک سخنران است. یک سخنران. سخنران یعنی مقرر. سپیکر. سخنران. سخنران، سپیکر، سخنرانی، स्पीच. सर हमाइश भी लिख दें. सुखनरान और सुखनरानी, हमाइश. हमाइश यानी कॉन्फ्रेंस. कॉन्फ्रेंस हम میگیم कॉन्फ्रेंस. شدید کنفرانس یا همایش هم میگوییم. خب چند تا چیز دیگه هم ما میبینیم که این بنری که اینجا زده ان این هم مشابه کتاب شماست. متوجه شدید؟ روی جلد کتاب شما
با این عکس همخوانی داره، مشابهت داره. خب اینجا 4 نفر نشسته‌اند و افراد زیادی هم در سالن نشسته‌اند، بیشترشون عمامه رو سرشون هست. خب اینجا پرچم ایران هست. خب اینجا یه فرش زیبایی گذاشته شده. خب اینجا هم عکس آیت الله خمینی هست و اینجا عکس آیت الله خامنه‌ایه. این چیزها رو ما در این عکس می‌بینیم. خب کلمات جدید این درس رو ما اول می‌خوانیم، بعد میریم سراغ نکته دستوری. اول کلمات رو یاد می‌گیریم که آوردن ستا که حالش هست آور، یعنی این کلمه مخالف بردن هست. لانا یعنی ले जाने का अपोजिट लफ्ज़ है. आयंदे गुज़श्ते, आयंदे यानी आने वाला, गुज़श्ते गुजरा हुआ. इक़ामत स्टे یعنی به طور موقت اگر شما یه جایی زندگی میکنید ما میگیم اقامت. شما میرید اسلام آباد، مثلا آقای دکتر ظفر اسلام آباد رفته اونجا یه هتلی یه جایی مثلا چند روز اونجا بوده، ما میگیم کجا اقامت داشتید شما. مثلا من در یک هتل اقامت داشتم. اقامت کردن تو استی، اقامت اسم، اقامت کردن فعله. الان یعنی just now، الان. خب الکسی خسمتولین این یه استاد روسیه هست. الکسی خسمتولین یه استاد روسیه. خب ادمون هرزیک یعنی این از انگلستانه، این هم ایشون هم استاد ایران شناسی یا استاد زبان و ادبیات فارسی هستند. زینیان شین یعنی اهل چین، استاد زبان و ادبیات فارسی هست. عبدالودود اظهر دهلوی از نامش ظاهره که حتما از هنده. فرانکلین لوئیس از آمریکا هستند که ایشون هم استاد ادبیات یا زبان ادبیات فارسی هستند. شما شاید میدانید که نیویورک رو میگویند که ایران صغیر، ایران کوچک میگویند. اینقدر ایرانی اونجا وجود دارند که شما خیلی زیاد ایرانی ها رو میتوانید اونجا پیدا کنید و تقریبا تمام دانشگاه-های بزرگ آمریکا درس فارسی داره. معمولا مطالعات فارسی، مطالعات خاورمیانه به عنوان یک رشته در تمام این دانشگاه-های آمریکا و انگلیس و اروپا و روسیه همچنین تدریس میشه. ما در پاکستان هم به اون معمولا در تمام دانشگاه-های بزرگ پاکستان فارسی تدریس میشه. انشالله هر چیز بیشتر این بازار فارسی رونق میگیره، خدا کنه. خب به هر حال بار ما گاهی میگیم یک بار، 2 بار، 3 بار، اینو هم میگیم دفعه، 1 دفعه 2 دفعه. ولی टाइम, ओकेजन एंड लगेज, برای हर से बार आपका जो लगेज होता है उसको भी कहते हैं शुमा बारदारी. तो आपके पास वजन है, कोई बार है, कोई लगेज है. बरगश्तन सिता के हालश हस बरगर, टू रिटर्न, वापस आना. तकरीबन हम उर्दू में भी कहते हैं तकरीबन. चश्म बा आन मीबीनी, यानी चश्म यानी आंख, यानी चीज़ी की عضو بدنی که ما به وسیله آن میبینیم چشم میگیم. خب ولی چشم هم میگیم چشم، ولی بیشتر برای اینی که این دستور شما، فرمایش شما روی چشم من، یعنی میگیم چشم باشه، اطاعت میکنم، من قبول میکنم. برای به معنی اینه حتما. آره حتما भी कहते हैं, उर्दू में कह सकते हैं कि हतमी तौर पर, यानी सर्टेनिटी जिसमें है. दशुई भी कहते हैं, या मिसाल के तौर पर आप कुछ अल्फाज देके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दशुई आजकल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि वो जगह जहां आप हाथ धोते हैं. ये एक पोलाइट नाम है दशुई के लिए, वाशरूम के लिए. हम आजकल वाशरूम कहते हैं. दावत शुदान, to be invited, दावत करदन to invite, दावत शुदन to be invited, यानी दावत करना और मदऊ होना किसी की, यानी मुझे दावत दी गई है, मैं वहां पे मदऊ हूँ. I am invited, यानी मन दावत शुदम. अच्छा yes जी, बस यही पूछना था सर. रौनन, रौंदन
टू ड्राइव, किसी भी चीज को हंकाना, दौड़ाना, चलाना रांदन कहते हैं। रांदन सिता के हालिश अस रान मन माशीन मी रानम, यानी मन रानंदगी मी कुनम दर वाक़ई। रानंदे ड्राइवर को कहते हैं, रानंदेगान या रानंदेहा। शिरकत पार्टिसिपेशन, इसको भी कहते हैं, एक मतलब और भी है। शिरकत कहते हैं कंपनी को भी कहते हैं, कोई भी कंपनी है, यानी मसला शिरकत फौलाद साजी, शिरकत उतूबूसरानी, शिरकत हाँ ये मुख्तलिफ दार जहान वजूद दार है। शिरकत बैनुल मिलली, शिरकत मिल्ली, एक शिरकत मसलन जहानी मिशे गुफ्त। शिरकत करदन टू पार्टिसिपेट, शुस्तन टू वॉश, सिता के हाल है शू, शू। शुदन का शो है, शुदन का सिता के हाल क्या है शो। मीशवम मन, मतलब ये चीज़ी मीशवम, मन जूद खस्ते मीशवम। शुस्तन शू हस, यानी मन दस्त खुदमरा हर बार मीशूयम। खूब इश्क लफ बेज़बान उर्दू हम मा इश्क इस्तिफादे में कुनीम। अलागे इंटरेस्ट, अटैचमेंट। गुफ्तगू करदन टू डिस्कस, बातचीत करना। लाले एक फूल का नाम है, हम उर्दू में भी कहते हैं गुल लाला, और लेकिन ईरान में एक होटल का भी नाम है होटल लाले, होटल लाले। बहरहाल बस उम्मीदवार इन कलिमात जदीद और शुमा याद गिरफ्ते वमा मीरीम सुराग दर्स जदीद, इमरूज एक फ़ेल जदीद याद में गिरीम व उन हास फ़ेल आयंदे, पास्ट सॉरी फ्यूचर टेंस आज हम सीखेंगे। ठीक है, आज हम फ्यूचर टेंस सीखेंगे। अब तक तकरीबन आप सारे अफ़आल पढ़ चुके हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, सब पढ़ चुके हैं। इसमें दो अफ़आल बाकी थे, एक यही है जो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर, एक है पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है, अफ़आल है, वर्ब जिसे हम कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप उसके बाद आपको किसी भी जुमले को पढ़ने में स्ट्रक्चर के एतबार से कोई दुश्वारी नहीं पेश आनी चाहिए। हो सकता है आपको लफ्ज़ का मतलब पता ना हो, या हो सकता है कुछ बाज़ जुमले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, अदरवाइज आप पूरे सारे स्ट्रक्चर्स अब तक फारसी के जितने भी टेंसेस हैं, आपके पर्शियन के टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं। और मैंने आपको अफ़आल की पूरी एक फहरिस्त भी भेज दी थी, मसादिर जिसमें मौजूद थे, तकरीबन 200-300 मसादिर थे, और सबको एक मसदर का यानी निविश्तन को मैंने सर्फ करके कंजुगेट करके भी दिखाया गया था कि तर्जुमे के साथ कि किस तरह से किसी एक मसदर को हम मुख्तलिफ टेंसेस में किस तरह से कंजुगेट कर सकते हैं या उसको गिरदान बना सकते हैं। चले, तो सबसे पहले जो एक चीज़ जो आज हम सीखेंगे वो है मसदर कूता। मसदर कूता किसे कहते हैं, यानी लफ्ज़ का मतलब। मसदर आपको बताया था मैंने पहले क्या मतलब था। मसदर वो इस्म है या वो कलिमा है कि जिससे फ़ेल सादिर होते हैं, अफ़आल बनाते हैं, जिसकी मदद से हम उस लफ्ज़ को हम मसदर कहते हैं। मसदर जिससे अफ़आल बनते हैं उसे हम मसदर कहते हैं। फारसी में मसदर की अलामत क्या है, तन या दन है। ठीक है, और आपको ये बताया मैंने कि फारसी में मसदर के दो फॉर्म, मसदर से दो फॉर्म्स मजीद निकलते हैं इंग्लिश की तरफ से। वो कौन कौन से हैं, सिता के हाल, सिता के गुज़श्ते पहले बता देता हूँ आपको, और सिता के हाल। ये दो उससे सिता के हाल और सिता के गुज़श्ते दो फॉर्म्स इसके बनते हैं, जिसे आप कह सकते हैं इसका रूट वर्ब कह सकते हैं, रूट वर्ब फॉर प्रेजेंट, रूट वर्ब फॉर पास्ट ये भी कह सकते हैं। तो सिता के हाल हो गए। एक चीज़ हम आज जो हम कहते हैं कि जो हम आज सीखेंगे वो है मसदर कूता। मसदर कूता का मतलब क्या है, बाज़ औक़ात हम मसदर से नून को हज़्फ़ करने के बाद बाकी रहने वाले लफ्ज़ को मसदर ही के मानू में इस्तेमाल करते हैं।
सूरत में हम कहते हैं ये मस्दर कूता है। नून को हटाने के बाद सिता के गुज़श्ते भी बनता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इख्तिसार की वजह से मस्दर को नून के बगैर भी कहते हैं। जैसे हम उर्दू में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं कि रफ़्त तो आमद, रफ़्त तो आमद, क्या तर्जुमा करेंगे हम इसका उर्दू में? आना जाना। आना जाना, वेरी गुड। हमने रफ़्त का मतलब आया गया तो नहीं करते ना, सही। आया गया करेंगे या आना जाना करेंगे? सही, आना जाना ही करेंगे। जाना तर्जुमा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रफ़्त व आमद दरअसल ये रफ़्तन व आमदन है, जिसको मुख्तसर करके हमने रफ़्त व आमद कर दिया है। तो जब मस्दर से नून को हज़्फ़ करें, ठीक है, और वो मस्दर ही के मानों में इस्तेमाल हो तो हम उसे मस्दर कूता कहते हैं। मस्दर मुरख्खम कहते हैं सर? वेरी गुड, मस्दर मुरख्खम भी कहते हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी फारसी है, इसलिए हम मुरख्खम नहीं करते, वो अरबी से आया हुआ है। मस्दर कूता, ये शॉर्ट इन्फिनेटिव आप कह सकते हैं, शॉर्ट इन्फिनेटिव, मुख्तसर शुदा, इख्तिसार शुदा मस्दर, ठीक है। तो हम आया गया अगर मानी दे रहे हैं, ठीक है, उस सूरत में ये सिता के गुज़श्ते हैं। अगर आना जाना ही के मानों में, मस्दर ही के मानों में इस्तेमाल हो रहा है तो वो मस्दर कूता है। इस बात को आप लोग ज़हन नशीन कर लीजिएगा। ये बाज़ औक़ात हम फारसी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अभी रफ़्त आमद, आमद और रफ़्त फारसी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आमद और रफ़्त, आमद और रफ़्त यानी आना जाना, या रफ़्त और आमद, ये दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो नीस आपने सुना है, यानी हस्तन और नीस्तन, यानी बूदन और नबूदन, हस्त तो नीस्त हमारा वजूद, ये भी आप कह सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज आप बना सकते हैं। लेकिन जी नीस तो नाबूद भी होता है। नीस्त वन, लेकिन नाबूद प्रेजेंट टेंस, वो मस्दर के मानों में नहीं है ना, न था न है न था हो गया ना, वो मस्दर के मानों में नहीं हुआ, ठीक है। नीस्त आप कह सकते हैं। तो इसे हम मस्दर कूता कहते हैं कि जिसमें नून को हस्फ किया गया हो, ठीक है। जैसे आमदन से आमद, आमद, आमद सिता के गुज़श्ते भी है और मस्दर कूता भी है, दोनों है। हमें फ़र्क कैसे पता चलेगा? ये जुमले में ही पता चलेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप तर्जुमा करें पास्ट टेंस में, अगर हम तर्जुमा कर सकते हैं तो ये क्या यूँ समझ लीजिएगा कि सिता के गुज़श्ते हैं। अदरवाइज ये मस्दर कूता है जो मस्दर ही के मानों में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सहूलत की खातिर उसमें से नून को हस्फ किया गया है, ठीक है। तो ये बात सिता के गुज़श्ता होगा तो उसमें अलामत ज़मीर ज़रूर होगी, मतलब शनासे फेल ज़रूर होगा, अलामत ज़मीर भी लगेगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मस्दर के साथ आपको अलामत ज़मीर या यूँ समझिएगा अलामत फ़ाइल नहीं लगाएंगे, शनासा नहीं लगाएंगे उसके साथ। चले, तो मस्दर कूता क्या है? मस्दर कूता शक्ल सिता के गुज़श्ते दारत, शक्ल के एतबार से यानी फॉर्मेशन के एतबार से ये सिता के गुज़श्ते की तरह ही होता है, लेकिन ये वली तरफ़िल आयंदे बेमानी मस्दर, लेकिन ये इसको हम फ्यूचर टेंस बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर टेंस हम इसी से बनाते हैं, और लेकिन सिर्फ इसी से नहीं बनते, उसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब का और इस्तेमाल करते हैं। और मस्दर को हम एज ए इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं नून के बगैर, जैसे खानदन से खान, रफ्तन से रफ्त, गुफ्तन से गुफ्त। फॉर्मेशन के एतबार से, शक्ल के एतबार से ये सिता के गुज़श्ते की तरह ही है, लेकिन मानी के एतबार से ये अपने मस्दरी मानों में इस्तेमाल होता है, ठीक। चले, हम फ्यूचर को इसी से बनाते हैं। फ्यूचर को किससे बनाते हैं? मस्दर कूता से बनाते हैं। मस्दर कूता से बनाते हैं। अभी जब हम खुद तालिब इल्म थे, ठीक है, तो उस वक्त हमें बताया गया था कि खाह के बाद शनासा आएगा, या उस वक्त हमें शनासा नहीं बताया गया था, बुने या इसके कोई और नाम अलामत फ़ाइल बताया गया था। अलामत फ़ाइल है, और फिर उसके बाद सिता के गुज़श्ते के लिए उस ज़माने में बुन माजी कहा जाता था, बुन माजी आएगा। तो उस वक्त भी मेरे लिए ये कन्फ्यूजन था कि यार हमें फ्यूचर बनाने के लिए
पास स्टेम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो पास स्टेम को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये मस्तर ही को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन नून के बगैर। इज दैट क्लियर? चल, जी सर। तो हम आते हैं, बनाते हैं कैसे वो बताते हैं आपको। विल का मतलब क्या है? विल सर खाली विल जो होता है वो ख्वाहिश के मायनों में आता है, चाहने के इसके मायनों मानों में हाँ, यानी आपका विल है, इरादा है ना। विल इरादा, आपने किया नहीं है लेकिन किसी चीज के करने का इरादा है। मेरा वहां जाने का इरादा है। सही, ठीक, इसीलिए विल और खा एक्चुअल ट्रांसलेशन यही है, यू विल गो। ठीक है, तो समझ में आ गया। फारसी में बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाएंगे हम। तो फारसी में एक हेल्पिंग वर्ब खास्तन का हम इस्तेमाल करेंगे। खास्तन का सिता के हाल क्या है? हाँ। तो विल का मतलब है चाहना, खास्तन हो गया। ठीक है, सिता के हाल है खा। सही। सिता के खा के बाद आप शिनासा लगाएं, जो भी आपका फाइल है उसके हिसाब से शिनासा लगाएं। फिर मसदर पूता, कोई भी फेल हो, अस एक्चुअल फेल को हम मसदर पूता की शक्ल में लिखेंगे, वो फिक्स है, उसके साथ कोई शिनासा नहीं लगेगा। शिनासा किसके साथ लगेगा? विल के साथ लगेगा। बेसिकली हम विल को चेंज करते हैं, आई विल गो या ही विल गो या शल को विल गो, तो हम हाँ विल के बजाय हम जमीर को चेंज करते हैं ना हम तो। हाँ, जमीर को जमीर नहीं कहेंगे यहाँ पे ना, अब जो आपको सिखाया गया शिनासा। हाँ जी, शना से फेल। मसदर कूता अपनी जगह बरकरार रहेगा, हम खाह के साथ शिनासा लगाएंगे। शिनासा लगाएंगे, जैसे खाह के साथ शिनासा लगाएंगे, जैसे मन हम मैं जाऊंगा, मन खाह हो गया, उसके बाद शिनासा आ गया और रफ्त यानी रफ्तन, मन ख्वाहम रफ्तन। असल में ये है, क्या है असल में? मन ख्वाहम रफ्तन, मैं चाहता हूं जाऊं, मैं चाहता हूं जाना, यानी मैं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं जाना आप कहें, या मैं जाना चाहता हूं, यानी विल है, ये आपका इरादा है। ठीक है, लेकिन विल से अलग है थोड़ा सा जी। आई वांट से ये अलग है जी। सर मैं जाऊंगा ऐसे भी कह सकते हैं, मन मी रफ्तम। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए ये बता रहा था, कहेंगे यही मन ख्वाहम रफ्त, जस्ट समझाने के लिए। लेकिन हम इसको एक्चुअल जो लिटरेरी तर्जुमा हम करेंगे वो है मैं जाऊंगा, यही तर्जुमा करेंगे, आई विल गो। ठीक है, हम जाएंगे मां ख्वाहीम रफ्त, यानी हम जाएंगे, मरियम मम्मी रफ्तम जो है वो गुज़िश्ता इस्तिमरारी हो जाएगा, मैं जाती थी हो जाएगा वो। ठीक है, और तू जी ओके। ही रफ्त, तो रफ्त फिक्स है, क्योंकि क्यों फिक्स है? इसलिए कि ये मसदर है, इसलिए फिक्स है। तू ख्वाही रफ्त, तुम जाओगे, तू जाएगा। जाएगा। ठीक, ये मेरा अपना मेरी अपनी फिलॉसफी है। बहुत सारे लोग इसको तुम कर देते हैं, लेकिन मैं तुम नहीं समझता इसको, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हम सिंगुलर में ही तर्जुमा करेंगे। तुम एज ए प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। तुम भी तो सिंगुलर होता है, तुम प्लूरल कब होता है? खैर वो बाद क्लास के बाद आप उस पर हम डिबेट करेंगे। हाँ जी, वो बाद में बात करेंगे। शुमा रफ्त, यानी तुम आप जाएंगे, आओगे, आप जाएंगे, दोनों कहेंगे आप। ठीक है, आप दोनों कह सकते हैं। इसके बाद वो जाएगा, ऊ ख्वाहत रफ्त। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? वो जाएगा या जाएगी भी कह सकते हैं। ठीक है, जाएगी भी कह सकते हैं, मैं जाऊंगी भी कर सकते हैं। फारसी में मुज़क्कर और मुअन्नस नहीं है, इसलिए हम सिर्फ मुज़क्कर को एक थोड़ा सा प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप लोग दिल पे मत लीजिएगा। खूब, आन्हा
आनहा वैसे भी मर्द हमारे अक़लियत में है ना, जी, आनहा खाहन तो किसी रख, तरह तो दिलजोई होनी चाहिए। जी, आनहा वो खाहन रख, जाएंगे। वो जाएंगे। जाएंगे। तो ये है बुनियादी तौर पर फ्यूचर टेंस, फेल आयंदे। फेल आयंदे में हम, तो ये हमने सीखा कि असल में जो एक्चुअल वर्ब है, जो हमारा फेल असली है, वो मस्दर की सूरत में फिक्स रहता है, मस्दर कूता की सूरत में फिक्स रहता है, उसके साथ शिनासा नहीं आता। हम बुनियादी तौर पर खाह के साथ शिनासा लगा देते हैं। खाह कहाँ से आया है? सिता के हाल है खास्तन का। ठीक है, चले अब आपको ये जो मसादिर दिए गए हैं, इनको फ्यूचर टेंस में इसकी मदद से आपको ये जुमला कंप्लीट करना है। खानुम साइमा बताएं, माँ शुमार दर आयंदे बे किश्वर मान दावत करदान। अरे माँ शुमार दर आयंदे बिकिश्वर मान दावत खाहीम कर। दावत खाहीम कर, ठीक है। नेक्स्ट खानुम ज़ेबा। जी सर। शुमा व हवा फिमाई ईरानी बेतहरान फाहिद आमद। शुमा व हवा फिमाई ईरानी बे तेहरान खाहिद आमद। वेरी गुड। आप ईरानी एयरप्लेन से तेहरान आएंगे। हम अगले आने वाले दिनों में, हम फ्यूचर में आपको हमारे मुल्क में दावत करेंगे, बुलाएंगे। और में राबिया, रानंदे शुमारा होटल रानंदे शुमारा अज फरूदगाह बा होटल फिर फरूदगाह बे होटल ख्वाहिद का आवर्द। नहीं, कौन लाएगा? हु विल ब्रिंग? रानंदे, रानंदे सब्जेक्ट। जी 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 जी, ख्वाहिद ख्वाहिद ख्वाहद आवर्द। ड्राइवर लाएगा ना, जी ड्राइवर आपको एयरपोर्ट से होटल लाएगा। जी जी जी। हो आगे डॉक्टर जफर। जी, अगर पीश खिदमत होटल होटल उताक होटल या होटल, पीश खिदमत होटल उताक तान रा उठाओगे थान रा ताके तान रा निशान खाहत दाद। वेरी गुड। निशान खाहत दाद। खानुम मरियम। सर इसका क्या मतलब है जो जफर साहब ने पढ़ा है? यानी वेटर, होटल का वेटर आपको कमरा दिखाएगा। निशानदादन दिखाना, होटल का वेटर आपको आपका कमरा कमरा दिखाएगा। जी सर। आपका कमरा दिखाएगा। जी सर नेक्स्ट। दर दर इन उताक बिस्यार राहत खाहद। सर नहीं, मुझे नहीं आ रहा। दर इन उताक बिस्यार राहत खाहद कूद। वो होटल का कमरा आपको दिखाएगा। आप इस कमरे में आराम से रहेंगे, बहुत आराम, बहुत रिलैक्स रहेंगे। सर आप कहाँ लिखा है? अंडरस्टूड है ये। अच्छा सर ये भी तो हो सकता है कि, सर ये भी तो हो सकता है कि इस कमरे में बहुत ज्यादा आराम होगा, यानी राहत खाहत बूत भी तो हो सकता है। चिकसी राहत राहत आगा। कौन आराम से रहेगा? राहत अच्छा दैट इज नॉट वर्ब, यानी अच्छा वो आपको कमरा दिखाएगा। ये और इस कमरे में आपको आप बहुत आराम से रहेंगे। बूदन अच्छा, यानी कि पूरा जुमला शुमा शुमा दरीन उताक बिस्यार राहत। फारसी में आमतौर पर शुमा को हस्फ किया जाता है जी, लेकिन इसको करना चाहिए था, लेकिन किया है, गलत है, ठीक है, लेकिन किया है जी। आप ही बताइए खानुम साइमा, नेक्स्ट वन। मौके रफ्तन गुजरनामे व बिलीत रा अज पजीरिश खाहिद गिरफ्त। वेरी गुड, यहाँ पे भी खाहिद ही आएगा। खाहिद गिरफ्त, यानी जाते वक्त
जाते हुए वक्त या जाते हुए पासपोर्ट और टिकट रिसेप्शन से इस्तकबालिये से आप लेंगे। लेंगे या लीजिएगा। लीजिएगा नहीं, लेंगे। लेंगे सॉरी, अम्र नहीं है, ये फ्यूचर है। यानी होगा क्या, प्रोग्राम बता रहे हैं ना आपको, कि होगा ये कि आपको वो लेके आ जाएगा, आप इस होटल में आपको बड़ा सुकून मिलेगा, यूं भी कह सकते हैं, आप सुकून से रहेंगे, फिर जाते हुए आप यहाँ से अपना पासपोर्ट लेंगे, ये टिकट लेंगे। सही है, सॉरी So, सर। the future tense is used in the formal language। ये आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि प्रेजेंट टेंस है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम दूसरे दो अफ़आल के लिए भी, प्रेजेंट के अलावा दो और अफ़आल के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें से एक है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और दूसरा है क्या, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के लिए भी हम प्रेजेंट को ही इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, लेकिन फ्यूचर को हम ज्यादातर फॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या डिटर्मिनेशन को जाहिर करने के लिए आप, मैं बहुत डिटर्मिन्ड हूँ, इसलिए मैं आऊंगा, ख्वाहम आमद, ठीक है, तो उस सूरत में ठीक है, या फॉर्मल लैंग्वेज में ठीक है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज में प्रेजेंट इंडिकेटिव से काम चला लेंगे, प्रेजेंट इंडिकेटिव से आप अपना काम चला लेंगे, ठीक है। जैसे आप देख लीजिएगा, माँ शुमारा दावत खाहिम कर, यानी आम गुफ्तगू में कैसे कहेंगे हम, माँ शुमारा दावत मी कुनीम, हम ये नहीं कहेंगे। या आन्हा कमी तमरीन खाहन कर, आमतौर पर कैसे कहेंगे, आन्हा कमी तमरीन मी कुनन। दैट इज फैंटास्टिक। फारसी में असल खूबी यही है कि कम से कम अफ़ाल में ज़्यादा से ज़्यादा मफाहिम पहुंचा सकते हैं हम, और वो इसी के आदी है। आप भी आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ के आदी हो जाएंगे। खानम ज़ेबा, ये आप बता दीजिएगा इसको, जैसे इसको प्रेजेंट में लिखा हुआ है, ये जिस टेंस में लिखा हुआ आप इसको फ्यूचर में लिखिए, फ्यूचर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। मन पूरा बेनहार दावत खाहिम कर, दावत खाहम कर, मैं उसको लंच पे इनवाइट करूंगी या करूंगा, मैं उसको लंच पे इनवाइट करूंगी, ठीक है। खानम राबिया, माँ मेहमान दानिशगाह तेहरान हस्ती, माँ मेहमान दानिशगाह तेहरान, दानिशगाह तेहरान ख्वाहिम हस्तम। बूदंद क्यों सर, ये मुझे नहीं समझ आया। अच्छा, ओके ओके, ठीक है ना। ठीक टू बी को इन पास्ट बूद इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट में अस इस्तेमाल करेंगे, और पहले अम्र वगैरह या जो सब्जेक्टिव वर्ब्स है उसमें हम बाश इस्तेमाल करेंगे। तो ये वेरिएशन है इसमें थोड़ा सा। खाहिम बूद, वी विल बी, माँ मेहमान दानिशगाह तेहरान हस्तीम, वी आर गेस्ट ऑफ तेहरान यूनिवर्सिटी, वी विल बी गेस्ट ऑफ तेहरान यूनिवर्सिटी, ठीक है जी सर। आगे डॉक्टर जफर जी आगा, बच्चे हा इन शेर राखाहन खान। वेरी गुड। बच्चे हा इन शेर राखाहन खान, बच्चे ये शेर पढ़ेंगे, बच्चे ये शेर पढ़ेंगे, ठीक है। खानुम मरियम नेक्स्ट। उस्ताद इंशाई मारा तसही मी कुनत, यानी इसको क्या कन्वर्ट कर ले, यानी उस्ताद हमारा मजमून, उस्ताद हमारे मजमून को इस्लाह करता है, वो इस्लाह करता है, उसको करेक्शन करता है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, या करेंगे, ठीक है, हम उर्दू में करेंगे, करेंगे। मारा तसही ख्वाहन करदन, वेरी गुड। तसही ख्वाहत कर, ख्वाहत कर, करदन तो है लेकिन नून को आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा। उस्ताद इंशा हमारा तसहीह ख्वाहत कर, उस्ताद हमारा मजमून इस्लाह करेगा। खानुम साइमा,
आनहा बराए ज़ियारतगाह है, आनहा बराए ज़ियारतगाह ग़िज़ा खाहन पुख्त, हो वो चल गिरिये में गुनी, ज़ियारतगाह। जी सर, चल गिरिये में गुनी। नो आगा। आनहा आप बराए ज़ियारतगाह ग़िज़ा खाहन पुख्त, वो खाहन ज़ियारतगाह के लिए खाना पकाएंगे। हो खानुम ज़ेबा, नेक्स्ट वन आप बता दें। सर रानंदा बा ईशान सोबत फाहत कर। वेरी गुड। रानंदे बाईशा सोहबत खाहत कर, यानी ड्राइवर उनसे बात करेगा, से बात करेगा। ड्राइवर उनसे बात करेगा। हो तो ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंसेस ना। नेगेटिव कैसे बनाते हैं? नेगेटिव बनाना ना बहुत आसान है, खाह से पहले ना लगा दीजिएगा बस। खाह से पहले आप ना लगा, जैसे खाहम राफ ना खाहम राफ, खाहीम कर ना खाहीम कर, दावत खाहीद शुद ना खाहीद शुद। तो ये याद रख लीजिए, खाहत से पहले, खाहम से पहले आपको ना लगाना है, ठीक है। अलन खानों में टाइम। राबिया। आगा मेरी बारी। ऊ नहीं नहीं, आपकी बारी नहीं है ना, ये 6 का रोटेशन है ना, आप 5 से 6 का रोटेशन है, तो अगले से शुरू होगा जी। ऊ अज कहते हैं बाज पहले आता है। बच्चे नहीं स्थित शो कि मैं फाहमिदिन चीज हारो जी। 6 के 6 तो आपसे शुरू हो जाता जी। ऊ अज बाजार इंजा टेलीविजन ना खरीद न खाहत नखाहत। खरीद, ना खाहत खरीद। यानी वो बाजार से, यहाँ बाजार टेलीविज से, बाजार से, यहाँ के टेलीविजन बाजार से नहीं टीवी नहीं खरीदता खरीदेगा। न खाहत खरीद या नहीं खरीदता, ये ठीक रहेगा सर। जी। नहीं खरीदेगा। नहीं खरीदे खरीदेगा, हम्म, न है ना, न खाहत खरीद, नहीं खरीदेगा जी। आगे डॉक्टर जफर। मन पूल रा बेबच्चा बेबच्चे बच्चे, बच्चा ना बोले, बच्चे। मन फूल रहा बे बच्चे, बेबच्चे नखाहम दाद। वेरी गुड। क्या मतलब है? मैं बच्चे को पैसे नहीं दूंगा। वेरी गुड, मैं बच्चे को पैसा नहीं दूंगा या पैसे नहीं दूंगा। हो खानुम मरियम। ईशान ईशान दर इन दानिशकदे न ईशान दर इन दानिशकदे न ख्वाहन दर्स दाद। हमें जब कंपाउंड वर्ब है ना, तो जो भी लगाना है कंपाउंड वर्ब के इसम के बाद लगाना है, दर्स पहले कर दीजिएगा। ईशान दर इन दानिशकदे दर्स, ईशान दर इन दानिशकदे दर्स नख्वाहत नखाहत दाद। नखाहंदाद। जी, वो इस कॉलेज में या इस फैकल्टी में नहीं पढ़ाएंगे, वो नहीं इस पढ़ाए। फैकल्टी में नहीं पढ़ाएंगे। सर साइमा। यहाँ सर एक क्वेश्चन है, जी यहाँ जी जो ईशान दर इन दानिश कदे ये आन्हा के मायनों में जी। है ना। ओके ईशान थैंक एक बंदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एज ए अच्छा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, जी एज ए ओके प्लूरल इस्तेमाल करते हैं जी। ठीक थैंक यू। ईशान और आन्हा एक ही होता है। जी खाद में ओ मरियम मायनी हो गया ओ जी। खाद में मायनी साइमा। मैं बोलूं, ओ मायनी इन जुमले रो न खाहत फहमीद, ने न खाहत फहमीद। वो मानी इन जुमलरा नखाहत फहमी, क्या तर्जुमे है? वो इस जुमले को नहीं समझेगा, वो इस जुमले के मायने नहीं समझेगा। वो इस जुमले के मानी नहीं समझेगा। हो खानों में जेबा। माँ का दो साथ दीगर नाख्वाहिम रसीद। माँ था दो साथ दीगर न खाहिम रसीद, वेरी गुड। माँ था दो साथ दीगर न खाहिम रसीद, क्या मतलब है? हम 2 घंटे हम अगले 2 घंटे तक, अगले 2 घंटे तक नहीं पहुंचेंगे। वेरी गुड, हम अगले 2 घंटे तक नहीं पहुंचेंगे। खेल खूब। खानों में राबिया। जी आगा
शुमा ई हफ्ते बेकारतान इदामे को पहले कर दीजिएगा, जो कंपाउंड वर्ब है ना, तो इदामे के बाद खास आएगा, इदामे दादन। इदामे खाही दाद, मनफी मनफी सॉरी, नेगेटिव के साथ, इदामे ना खाही दाद, ना खाहिदाद। ये एज ए क्वेश्चन पूछा गया, टोन आपका वैसा होना चाहिए। शुमा इन हफ्ते बेकारतन इदामे ना खाहिदाद, जी आका। शुमा इन हफ्ते बेकारतन इदामे ना खाहिदाद। आप इस सर हफ्ते अपना काम कंटिन्यू नहीं करेंगे, जारी नहीं रखेंगे, इस तरह से। भले आका। امیدوارم شما فهمیدید تا اینجا درست فهمیدید که فعل آینده چطور ساخته میشه. یک صفحه دیگه رو هم میخوانیم. بد نیست که وقتی در یک جمله یا دو جمله جداگانه فاعل و اجزای جمله یکی باشه، در اون صورت ما میتوانیم که بعضی با و جمله رو مرکب کنیم، ترکیب کنیم و بعضی چیزهایی که تکراری هستند که اونها رو میتوانیم حذف کنیم. یعنی जब दो जुमले हो, दोनों का फाइल सेम हो और फेल भी सेम हो, तो उस सूरत में हम उन दो जुमलों को व के साथ मिला के एक जुमला बना सकते हैं। तो उस सूरत में जो रिपीटेड अल्फाज है, हुरूफ है, उसको हम हज़्फ कर सकते हैं। जैसे मीखाल सूप ज़ियाद मिखोरत, मीखाल सालात ज़ियाद मिखोरत। तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, मीखाल सूप व सालात ज़ियाद मिखोरत, इन सारी चीज़ों को हम हज़्फ कर देंगे और व के साथ इनको जुमले को शॉर्ट कर देंगे, जुमले को उताह कर देंगे। यानी मीखाल सूप व सालात ज़ियाद मिखोरत। खब अलम खानुम मरियम नौबत शुमा, इन दफ़े की शुमा शुरू मीशे, यानी जिस पे ख़त्म हो जाता है अगले से वही से शुरू होता है। ये बात उसूल यही है। अगर आप 6 है तो 6 का मतलब है दोबारा पहले से शुरू होगा, ये उसूल है। जी तेहरान पायतख्त ईरान अस, तेहरान बुजुर्ग तरीन शहर कश्वर अस। तेहरान पायतख्त ईरान व बुजुर्ग तरीन शहर कश्वर अस। तेहरान पायतख्त ईरान, जो चीजें रिपीटेड है उसको आप हासिल कर दीजिएगा। तेहरान पायतख्त ईरान व बुजुर्ग तरीन शहर कश्वर अस, शहर कश्वर अस, शहर कश्वर ईरान या शहर कश्वर अस। यानी ईरान, यानी ये आपको कंपोजिशंस के उसूल बता रहे हैं ना, ये आप जुमले को कंपोज कैसे करते हैं, दो जुमले को आप शॉर्ट कैसे करके लिख सकते हैं। तेहरान पायतख्त ईरान और बुजुर्ग तरीन शहर कश्वर अस। तेहरान ईरान का दारुल और मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। खाने साइमा इमरूज दुशंबे व अव्वलिन रोज दर्स नीस्त। इमरूज दुशंबे व अव्वलिन रोज दर्स नीस्त। तर्जुमे चीज़े आज पीर और सबक का पहला दिन नहीं है। हो या वेरी गुड, ठीक है, कह सकते हैं, वेरी गुड। खानुम ज़ेबा, जबकि आज पहला दिन है जी, है हमारा पहला दिन जी। खानुम ज़ेबा जी उताक़िमा दस्तोशी व हम्माम दारत। वेरी गुड। उताक़िमा तशवी का क्या मतलब बताया था? वॉशरूम और हम्माम दोनों है। हम्माम नहाने की जो जगह है, जैसे बाथरूम है बेसिकली। हम्माम हमारे यहाँ पे भी गर्म हम्माम हुआ करते थे। ईरान में तो बड़े वसी इलाके पे बने हुए होते थे, बाकायदा सर्दियों में बहुत सारे लोग वहाँ पे होते थे। उनको नहलाने वाले लोग भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। अभी नहीं है, लेकिन सकाफती तौर पे ये लोग अभी वो चीज़ें प्रिजर्व करके उनको रखा हुआ, आप जाके देख सकते हैं उन हम्माम को। ठीक है, नेक्स्ट खानुम राबिया। शुमा दिरोज यक ऑटोमोबाइल खरीदीद, शुमा दिरोज यक खाना खरीदीद। शुमा दिरोज यक ऑटोमोबाइल व शुमा यक खाना खरीदीद। चीज़ है कि तकरारी, जो चीज़ रिपीटेड है उसको हज़्फ कर दीजिएगा, जुमला स्मूथ हो जाएगा, सीमलेस हो जाएगा जी। शुमा दिरोज यक ऑटोमोबाइल व यक खाना खरीदीद। खाने खरीदीद अब सही है।
जी सॉरी। क्या मतलब है? आपने कल एक कार और एक घर खरीदा। वेरी गुड। अवाई डॉक्टर जफर। दानिशजोहा बास्केटबॉल व वॉलीबॉल बाजी करदन। खब दानिशजोहा बास्केटबॉल व वॉलीबॉल बाजी करदन। बच्चों ने बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खेला। खेला। या वॉलीबॉल खेले, ठीक है। बच्चे वॉलीबॉल खेले और क्या खेले? बास्केटबॉल। तो खानम मरियम लास्ट वन। जी सर। जी। मन दर्स इम्रूज व दिरूज रा फहमीदे अम। वेरी गुड। दर्स इम्रूज व दिरूज रा फहमीदे अम। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यानी गुज़श्ते या नकली का टेंस है। अब बताएं, तर्जुमा बता दें। मैंने आज का और कल का सबक समझा। समझा है। मैंने समझा आज है। का और कल का सबक समझा है। तो ये रा के बारे में आपको पहले भी मैंने बता दिया था कि रा अलामत मफऊल है, यानी मफऊल के साथ रा आता है। लेकिन रा कहाँ पे आता है? डेफिनेट चीज के साथ आता है, जो बहुत डेफिनेट हो, स्पेसिफिक हो, उसके साथ आप रा लगाएंगे, या इंसानों के साथ आप रा लगाएंगे। आमतौर पर हर मफऊल के साथ आपको रा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मन गजा खुर्दम, द गजा इज नॉट डेफिनेट यहाँ पे, ठीक है, कोई डेफिनेट गजा की बात नहीं हो रही। लेकिन हम अगर ये कहे मैं ये खाना खाऊंगा, मन इन गजा रखा, हम फोर की सूरत में आप इन आने की सूरत में, आन आने की सूरत में, स्पेसिफिक होने की सूरत में आप रा लगा सकते हैं। मीखाल दूसरा श्रदर खियाबान दी, दूसरे मीखाल पूरा बे रेस्तोरान दावत कर। चले, तो ये पॉइंट्स, 2-3 पॉइंट्स हमने आज पढ़ लिए। एक तो आयंदगी सादे, फारसी में फ्यूचर का एक ही टेंस है जो आज पढ़ा हमने। इसके अलावा फ्यूचर का कोई और टेंस फारसी में नहीं है। एक तो ये उसको मुस्बत कैसे बनाते हैं, मनफी को कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा मुरक्कब जुमले हम कैसे बनाते हैं, वाव के साथ मिला के कैसे इस्तेमाल करते हैं, और रा का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चंद चीज़ें आज हमने सीखी है। नेक्स्ट क्लास में हम मतन को पढ़ेंगे और कुछ सवालात आपसे शेयर करेंगे और उनसे रिलेटेड सवालात भी आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, और फिलहाल मैं इसको स्टॉप करता हूँ।